Let's start the interpretation of the chapter number 5, The 100 Races. 1. This is part first by Elbasa Esther or Eleanor Estes. I have already covered about this author. Now let's come directly on this one about before you read, in fact. How do we judge the people around us? Means how do you just understand people around you? How do you just analyze them? What sort of people they are? आप लोगों को कैसे जानते मीन्स पहचानते हैं जो कि आपके इर्द गिर्द होते हैं? By their money, wealth and possessions. खास करके पैसे से, उनकी धन दौलत से, या जो उनके पास चीज़ें होती हैं. Possessions means any material things. मकान हो गया, गाड़ी हो गई, क्या वो पहनता है, likewise possessions. Or is there something more enduring value to look for in a person? Enduring value, काफ़ी आगे तक ले जाने वाली कोई चीज़. Enduring होता है carrying forward. Value, कोई ऐसी चीज़ जो कि उस आदमी के अंदर आपको विशेष दिखाई देती हो. This is a story of a sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmates. ये एक काफ़ी सेंसिटिव अकाउंट, बहुत ही एक महीन या बारीक जो है एक तरह का वर्णन है कि किस प्रकार से एक छोटी सी लड़की जो अपनी क्लास में है, उसके क्लासमेट उसको कैसा जज करते हैं, कैसा उसके बारे में सोचते हैं. Wanda Petrovansky is a young Polish girl. Young Wanda Petrovansky एक छोटी सी पोलैंड से रहने वाली, Polish, Pollander, all are same, who goes to school with other American children in an American town. वो एक अमेरिका के स्कूल में जाती है दूसरे बच्चों के साथ. These other children see Wanda as different in many ways. ये वहाँ के जो अमेरिका के बच्चे होते हैं वो वांडा को बहुत सारी चीज़ों में अलग देखते हैं. मीन्स उसके अंदर काफ़ी सारी कमियां निकालते हैं. Can you guess how they treat her? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कैसे जो है मीन्स वो उसको कैसे ट्रीट करते होंगे? Read the information in the box below and find out more about his community or about a related topic from an encyclopedia or the internet. जो नीचे दिया गया बॉक्स है उससे को पढ़िए और उससे जो है ये पता लगाइए. और even encyclopedia means where a lot of informations are there, especially about each and everything. And the internet, you know, the associations of net. So this is about his community. Community means where a lot of people of that particular cult reside. जहाँ एक ही जो है समुदाय के बहुत सारे लोग होते हैं, उसको एक community इंग्लिश में बोला जाता है. The Polish American community in the United States. पोलैंड अमेरिका की जो community है, एक सोसाइटी है in the United States of America के अंदर. The first Polish immigrants arrived in America in 1608, but the largest wave of Polish immigrations occurred in the early 20th century. जो first Polish immigrant था वहाँ पे जो आया, immigrant means a person who goes to another country for a job. एक व्यक्ति जब दूसरे देश में जाता है खास करके किसी जॉब पे के लिए, that is called immigration. इसलिए कहा जाता है immigrants या immigration visa. तो पहला जो पोलैंडर्स जो इमिग्रेशन पे आया अमेरिका में वो 1608 में था. पर इसके बाद जो है बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट वेव, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आए 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, शुरू में. When more than 1 people Poles migrated to the United States, जब लगभग 1 million 10 लाख 10 लाख पोलैंडर्स लगभग वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में आ गए.
द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम. ये पॉलिश स्टेट जो था, वहाँ पे जो एरिया था, ये नहीं था उस टाइम पे. एंड द immigrants were identified according to their country of origin rather than the ethnicity. और लोगों को पहचाने जाने लगा इन इमिग्रेंट्स को अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन की वजह से कि ये कहाँ से आए हैं, रादर दैन टू एथनिसिटी, उनकी जो है रेसिज्म या उनकी जाति के आधार पर नहीं. दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रियन पोल्स. इनको जो है रशिया से आए हुए पोलैंडा, जर्मन से आए हुए पोलैंडा और ऑस्ट्रिया से. ऑस्ट्रिया इज ए कंट्री, कोड कंट्री. दिस नॉट ऑस्ट्रेलिया, दिस इज ऑस्ट्रिया. इनको इस तरह से पहचाना जाने लगा. One of the most notable Polish American communities in Chicago and its suburbs. सबसे जो ज़्यादा notable means to be reckoned with, जिसको एक ज़्यादा जाने जाने वाली पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी शिकागो के और उसके इर्द गिर्द के एरिया में. suburb means nearby. So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world. तो इसलिए शिकागो को जो है दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिश सिटी के नाम से भी जाना जाता है. दूसरा, द्वितीय कहिए. द नेक्स्ट ओनली टू वार्सा. वार्सा के बाद, वार्सा इज ए सिटी, द कैपिटल ऑफ पोलैंड, पोलैंड की जो राजधानी है. पॉलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स. ये जो पॉलिश अमेरिकन थे, कई बार इनके साथ भेदभाव होता था. डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स के लोग इनके साथ बड़ा भेदभाव करते थे. एज पर द आयरिश, इटालियन एंड ज्यूस, जैसे कि जो है आयरलैंड से आए हुए लोगों के साथ या इटली से आए हुए या ज्यूइश लोगों के साथ, जो ये आपका फ़लस्तीन और इस साइड से जो माइग्रेट किए थे, स्पेशली इजराइल से. According to the United States 2000 census, means a census was held in United States in 2000, 2000 के अंदर एक जो वहाँ पे जनगणना हुई. 6,67,414 Americans of age 5 years and older reported Polish. ये इतने लोग जो है 6,67,414 अमेरिकन्स जिनकी लगभग एज 5 ईयर्स से ज़्यादा थी, वो जो है इतने लोग पॉलिश थे, पोलैंड के थे. एज अ लैंग्वेज स्पोकन एट होम, और जो उनके द्वारा वहाँ पे अमेरिका में जो उनकी अपनी लैंग्वेज बोली जाती थी, विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, जो लगभग 1.4% है अंग्रेजी को बोले जाने के अलावा, और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, या जो पूरे अमेरिका की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसका 0.25% है. तो इसमें दिखाया गया है कुल मिला के, ये जो आपके सामने जो बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स में यही दिखाया गया है कि किस तरह से जो है लोगों का ह्यूज इमिग्रेशन हुआ. पहला जो आदमी था वो 1608 में गया था, वो एक पोलैंडर था. उसके बाद बहुत सारे जो है शिकागो के वहाँ पे पूरी बस्ती बन गई. और इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो ये अमेरिका है, ये एक ओरिजिनल कंट्री नहीं है. दिस इज अ हाइब्रिड कंट्री, मीन्स अ मिक्सचर ऑफ मैनी मैनी कंट्रीज. लॉट ऑफ पीपल है अक्रॉस द ग्लोब हैव जस्ट माइग्रेटेड ओवर देयर अकॉर्डिंग टू देयर इथनिसिटी. दे हैव जस्ट सेटल्ड ओवर, अपने जो है जाति के आधार पर, या वो डिफरेंट पार्ट्स में बस गए, और वो पूरी कॉलोनी जो है उसके उनके नाम से जाने लगी, जैसा कि एक यहाँ पे शिकागो के अंदर दिखाया गया है. वार्सा के बाद वो दुनिया की सबसे बड़ी, यूँ कहिए कि पोलैंडर्स की एक बस्ती है. नाउ लेट मी कम ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर पेज नंबर 64. दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ योर इंटरप्रिटेशन. Today, Monday, Wanda Petrowansky was not in her seat. And now the story starts. This is the first page of your interpretation. Today, Monday, Wanda Petrowansky was not in her seat.
Today is Monday, and Wanda Petroensky, this is the Polish girl who has migrated from Poland to the America. Wanda Petroensky was not in her seat. She is not in her seat means she is absent today. But nobody, not even Peggy and Madeline, but nobody, not even Peggy. Peggy is that girl, American girl who used to tease Wanda Petroensky, and Maddie is the short name of that girl. Madeline is full name, is associate or close friend of Peggy, and she always stays with her. Not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, और ना ही आज जो पैगी या मैडी है जिन्होंने कि ये सारा फन शुरू किया था, ये मजाक शुरू किया था उसको टीज करने का, नोटिस हर एब्सेंस, इन्होंने भी जो है आज उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया है. Usually Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in the room 13. Usually means normally, Wanda आखिरी सीट पे बैठती थी, आखिरी सीट से पहले वाली सीट पे बैठती थी, लास्ट रो के अंदर, 13 नंबर रूम के अंदर, 13 नंबर कमरे के अंदर वो लास्ट सीट से पहले वाली सीट पे बैठती थी. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. वो लगभग एक कोने में बैठती थी, वहाँ पर वो सभी लड़के बैठते थे जिनके एग्जाम्स में रफ बॉयज मीन्स very you can say not good. Rough boys who did not make good marks sat. जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आते थे वो जो है खराब लड़के वहाँ बैठा करते थे. The corner of the room where there was most scuffling of feet, और जहाँ पे पैरों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी, most roars of laughter when everything funny was said, और वहाँ पे वो बच्चे काफ़ी ठाके लगाते थे जब कोई चीज़ मजाक की कही जाती थी. and most mud and dirt on the floor, और उधर वहाँ पे सबसे ज़्यादा मड जो पैरों पे लग के आता है, थोड़ा बहुत कीचड़ वगैरह, वो और वो जो डर्ट धूल वगैरह उस कमरे के अंदर वहीं पे होती थी, फर्श के ऊपर. Wanda did not sit there because she was rough and noisy. Means she was not sitting there as she was rough and noisy. वो ऐसा नहीं था कि वहाँ बैठती थी तो वो काफ़ी जो है ख़राब थी या शोर करती थी. On the contrary, इसके विरोध में या इसके विपरीत, she was very quiet and rarely said anything. वो बहुत ज़्यादा शांत थी. She was not saying anything to anybody. There are two words, Q-U-I-E-T and Q-U-I-T-E. This is quiet and rarely said anything. She used to remain very calm and not saying anything to anybody at all. And anybody had ever heard her laugh out aloud. Means that was rare if somebody has heard her laughing in a loud voice. Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. कभी कभी वो थोड़ा हंस जो है अपना मुंह बना लेती थी जब वो स्माइल करती थी, बाकी इसके अलावा कहीं वो जोर से नहीं हंसती थी. Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Bogginside. कोई नहीं जानता था कि वो सीट पे क्यों बैठती है, unless it was because she came all the way from Bogginside. बस शायद जो है यही थी एक चीज़ कि वो Bogginside से आती थी. ये एक जगह का नाम है जहाँ वो रहती थी. And her feet were usually caked with dry mud, और उसके पैरों पे थोड़ी ही जो है usually caked with dry mud, सूखे कीचड़ की जो है थोड़ी बहुत वो जूतों पे लगी रहती थी. But no one really thought much about Wanda Petroensky once she sat in the corner of the room. परंतु कोई ज़्यादा नहीं सोचता था कि क्यों वो इस कमरे के कॉर्नर में बैठती है. The time when they thought about Wanda was outside the schoolhouse. जब भी ये लड़की उसके बारे में सोचती थी, normally that used to be the outside of the school at noon time. Means दोपहर के वक्त,
when they were coming back to school or in the morning early before school began. या तो वो स्कूल से जाते हुए होता था या फिर वो जो है अर्ली मॉर्निंग में स्कूल को के समय से पहले होता था स्कूल को आते हुए, तब ये जो है इसको प्लानिंग बनाती थी जो है छेड़ने की. When groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. जब वो 2-3 लड़कियां इकट्ठी होकर के खूब हंसती थी और जो है वो वहाँ पे स्कूल के प्लेग्राउंड टाइप के एरिया में मजाक करती थी. Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her. तो कभी कभार जो है वो वांडा के लिए इंतज़ार करती थी. टू हैव फन विद हर, उसके साथ मजाक करने के लिए. द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, द कमा हैज़ बीन यूज्ड, माइंड इट. द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, द नेक्स्ट डे वॉज ट्यूसडे. वांडा वॉज नॉट इन स्कूल, वांडा स्कूल में नहीं थी. आइदर, उस दिन भी नहीं आई. आइदर मीन्स आज भी. एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन. And nobody noticed that she is absent. But on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children, got good marks, who didn't track in a lot of mud. That on Wednesday, this is not Wednesday, this is Wednesday, but on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children, जो आगे बैठा करती थी Peggy और Maddie, who got good marks, जिनके लगभग अच्छे मार्क्स आते थे, एंड हु डिडंट ट्रैक इन ए होल लॉट ऑफ मड, और जो डिड नोटिस दैट वांडा वाजंट देयर, जो कि जिनके कीचड़ वगैरह या ये चीज़ नहीं लगी रहती थी, उन्होंने उस दिन जो है ये फील किया कि वांडा इज़ नॉट देयर. Peggy was the most popular girl in school. This is a bit important to try to understand. Peggy was the most popular girl in school. Peggy सबसे पसंदीदा एक लड़की थी स्कूल में. हर एक उसको चाहता था. She was pretty. This is not pretty. This is pretty. She was pretty. वो काफ़ी सुंदर थी. She had many pretty clothes. उसके पास बहुत सुंदर कपड़े थे. And her hair was curly. और उसके बाल घुंघराले थे. Madeline was her closest friend. Maddie. The name was being given on the top, Madeline, and this is a short name of Madeline. Maddie was her closest friend. And Maddie was her closest friend. The reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. Why Peggy and Maddie noticed Wanda's absence? क्यों जो है उन्होंने आज जो है इस चीज़ को महसूस किया? क्योंकि उसी की वजह से ये दोनों लड़कियां स्कूल के लिए लेट होती थी. उसको रास्ते में रोक करके उसके साथ वो मजाक करती थी और फिर उसको चिढ़ाती थी. तो इस प्रोसेस में वो जो है लेट हो जाती थी. They had waited, and I'm changing page. They have waited for Wanda. They continuously keep waiting for Wanda to have some fun with her, and she just hadn't come. और वो नहीं आई. They often waited for Wanda Petrovansky to have fun with her. वो उसके लिए प्राय, often means usually. They kept waiting for Wanda to have fun with her, उसके साथ मजाक करने के लिए. Wanda Petrovansky, most of the children in room 13 didn't have names like that. Wanda Petrovansky जैसा ये नाम है, इस टाइप के नाम कमरा नंबर 13 में किसी के नहीं थे. They had names easy to say. उनके नाम easy होते थे कहने में. They have easy pronunciation and a very shorter name.
like Thomas Smith Allen. There was a one boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny, but not funny in the same way that Petronsky was. एक लड़का था जिसका नाम बाउंस था, विली बाउंस पूरा नाम था. उसको सोचते थे कि ये काफ़ी फ़नी नेम है, परंतु इतना फ़नी नहीं था जितना पेट्रोन्स्की था कहने में, बिकॉज इट वॉज ए लार्ज नेम. सो इसमें बताया गया है कि अमेरिका में नॉर्मली छोटे नेम्स होते हैं, तो ये इसीलिए इसको टारगेट बनाया गया क्योंकि इसका नाम जो है अनयूजुअल था और वो प्रोनाउंस करने में या बोलने में जो है अजीब सा लगता था, जो कि सामान्य नामों से भिन्न था और बड़ा था. Wanda didn't have any friends. She came to school alone and went home alone. She always wore a faded blue dress that didn't hang right. उसके कोई दोस्त नहीं थे. वो अकेले स्कूल आती थी और अकेले स्कूल से जाती थी. She always wore a faded blue dress that didn't hang right. उसकी हमेशा एक ही जो है ड्रेस होती थी, ब्लू ड्रेस, फेडेड, और वो उसको फिट नहीं बैठती थी. It was clean, but it looked as though it had never been ironed properly. ये साफ होती थी, परंतु ऐसा लगता था कि आज तक इसको कभी भी जो है इसके ऊपर प्रेस या स्त्री वो नहीं घुमाई गई है, आयरन नहीं हुई है इसके ऊपर प्रेस करना. She didn't have any friends, but a lot of girls talked to her. उसका कोई दोस्त नहीं था, फिर भी बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थी. Sometimes they surrounded her in the yard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. कभी कभार जो है लड़कियां उसको के चारों तरफ खड़ी हो जाती थी स्कूल के ग्राउंड में, जब वो लड़कियों को हॉपस्कॉच खेलते हुए देखती थी. हॉपस्कॉच होता है वो, आपने हरियाणवी में सुना होगा, बीजो बांदरी. वो खाने टाइप के होते हैं और उनमें हम पत्थर डालते हैं और फिर एक सिंगल पैर से कूदते हैं, बीजो बांदरी. दैट इज कॉल्ड हॉपस्कॉच. खेलते हुए देखती थी स्कूल का जो है वॉन हार्ड ग्राउंड, जो पक्का जो स्कूल का ग्राउंड था, जो काफ़ी पुराना टाइप हो रखा था, वहाँ पे. दिस इज योर वांडा एंड दिस इज पैगी. नाउ Wanda, Peggy would say in most courteous manner, as though she were talking to Miss Mason. Wanda बड़े प्यार के साथ, courteous means highly educated, बहुत ही विनम्र स्वभाव के साथ वो उसको पुकारती, as though she were talking to Miss Mason. देखिए सी के साथ वर लगा हुआ है, it means she was in a group. वो बहुत सारी लड़कियों के साथ थी वहाँ पर. वैसे सी के साथ कभी भी वर नहीं आता है if it is not a exclamatory or a means specially exclamatory. In the exclamation sometime for wish this is being used, otherwise not in normal sense, but here he has used she were. It means it was a group of girls. She thought she were talking to Miss Mason, और उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे जो है वो means ऐसे बनावटी ढंग से कि जैसे वो मिस मैसन से, जो उनकी क्लास टीचर थी, उससे बात कर रही हो. Wanda, she would say, giving one of her friends a nug. नग होता है थोड़ा सा धक्का देना, आराम से अपने एक दोस्त को धक्का दे के वो कहती, जैसे लड़कियां हरकत करती हैं, ही likewise. She would say giving one of her friends a nug. अपने दोस्त को जो है थोड़ा सा धक्का देते हुए. Tell us, how many dresses did you say you had hanging up in your closet? This is the basic question of teasing. ये वो मेन मुख्य सवाल करती है टीज करते हुए उस लड़की को, चिढ़ाती है. How many dresses did you say? आपने क्या कहा, कितनी ड्रेसेस हैं आपके पास? You had, आपके पास. Hanging up in your closet. Closet होता है अलमारी, अलमीरा. आपकी अलमारी में आपने क्या कहा, कितनी जो है टंगी हुई हैं आपकी अलमारी में वो ड्रेसेस. Now I won't just continue further because video will be too long. I'll continue in my next session.